آج کی یہ شب جو شب عاشور ہے، اس کے کچھ اعمال ہیں جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. مسئلہ شب عاشور کے مخصوص اعمال جو ہیں اس میں یہ کہ شب داری کی جائے پوری رات. شب داری کا مطلب یہ نہیں صرف جاگنا. شب داری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم حسین کی شروعات ہیں، آپ یاد کریں کہ یہ کون سی شب ہے، کیسی شب ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. خاص کر کے اس میں ایک دوسرے کی غیبتوں سے محفوظ ہیں اس شب میں. دوسری بات یہ کہ زیادہ عاشورہ زیادہ پڑھا جائے. اس کے بعد ہے امام حسین اور ان کے قاتلوں پر ان کے اصحاب کے قاتلوں پر زیادہ سے زیادہ لعنت لانا. اس کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے. اور ایک چیز ہے کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 100 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہتر یہ کہ نمازیں بھی ممکن استعمال ہو جائے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ اس کے پڑھنے کو بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور ایسا کیا جائے کہ صبح میں فاقہ رکھا جائے. فاقے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کھائیں گے تو روزہ ہو جائے گا. مثلاً جو اپنے یہاں رائج ہیں جیسے کہ سونف کھانے یا سپاری کھانا یا دہی وغیرہ کھانا، ایسی کوئی شرط نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ فاقہ رکھا جائے. فاقہ اس طریقے سے رکھا جائے، اپنے آپ کو ایسا بنایا جائے کہ لگے کہ ہم ایک سوگوار ہیں. لگے کہ جس طریقے سے کسی گھر سے کسی کا جنازہ نکلتا ہے لوگ اقرار کہتے ہیں، اس طریقے سے اپنے آپ کو بنایا جائے. اور جو ہے اصل کی وقت میں کھاتے میں تھوڑا جائے 4 بجے تھوڑا جائے. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پئیں گے نہیں یا دہی وغیرہ نہیں کھائیں گے تو روزہ شمار ہو جائے گا. سب سے پہلے ان کے لیے یہ کہ روزے کی شرط کیا ہے؟ صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تب جا کے یہ روزہ شمار ہے. اگر جب ہم صبح سے فاقہ رکھ رہے ہیں 4 بجے روزہ تو فاقہ توڑ دے رہے ہیں تو یہ روزہ کہاں سے شمار ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز سے اجتناب کیا جائے. خاص کر کے جو بیان کیا گیا روایت میں کہ کل کے دن کسی کے لیے اپنے دلوں میں جو ہے بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تصویر لے لیں، اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کو لعنت دیں اور کربلا کے مظلوموں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے اوپر لعنت دیں. صلی اللہ علیہ میرے ذریعے شب عاشور کے مختصر اعمال تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر کوئی کرنا چاہے تو ہر کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کا اجر یہ ہے روایت میں کہ پروردگار عالم جو ہے 70 سال کی عبادتوں کا ثواب دے گا اگر جو ایسا کرتا ہے. 70 سال کی عبادت کون سی عبادت ہم اور آپ بھی کرتے ہیں اس کو نہیں. 70 سال عبادت وہ عبادت جو پروردگار عالم قبول کر چکا ہو. جو پروردگار عالم 70 سال کی عبادت قبول کرے گا، اگر ہماری اور آپ کی ایک رکعت نماز قبول ہو جائے تو ہماری کوشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے 70 سال کی عبادت قبول عبادت کا ثواب ملنے پر ملے گا اگر آپ کے اعمال جو ہے بجا جائے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ اعمال کو، اس لیے ویسے بھی سب لوگ جاگتے ہی آج کی رات، تو بہتر یہ کہ اعمال کے اعمال سے مقدار آپ ثواب کو مستحق ہے. ایسی بات نہیں آج کی یہ شب قیامت کی وہ شب ہے. یہ بھی تو باغ زہرا ہرا بھرا ہے، ابھی باغ زہرا بکھرا نہیں ہے. ابھی باغ زہرا کے سبھی پھول ہرے بھرے ہیں، لیکن جیسے اس کا نمودار ہوگی ویسے ہی باغ زہرا اجڑ جائے گا، باغ زہرا برباد ہو جائے گا. ہاں باغ ایسا آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. آج تو ایسی شب ہے، آج مسائل پڑھا جانا ہی نہیں چاہیے. صرف لفظ حسین کو ایک مرتبہ کہہ دے تو آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنا چاہیے. آج
सिर्फ इंसान तसव्वुर कर ले कि आज अभी अहले बैत के घर में सब जिंदा हैं, अभी औनो मोहम्मद जिंदा हैं, अभी अकबर जिंदा हैं, अभी अब्बास सलामत हैं, अभी अली असगर झूले में खेल रहे हैं, लेकिन जैसे सुबह नमूदार होगी, जोहर का वक्त होगा, असर का वक्त होगा, सब एक एक करके शहीद हो जाएंगे। यही नहीं, रिवायत कहती है कि 72 जनाजे निकल जाएंगे। अल्लाह खुदा आपको कोई गम नहीं सिवाय मजलूम करबला के। आज के ये सब जो मखसूस है, जो मसाइल पढ़े जाते हैं, मौला जी 10 मसाइल गालिबन पढ़े जाते हैं ज़्यादातर। क्यों? इसलिए कि वाहिद ऐसा शहीद है, जनाब अली असगर इस्लाम वाहिद ऐसे शहीद हैं जिनको 2 मरतबा शहीद किया गया है। मैंने कह दिया मैं आज बहुत आराम से मसाइल पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, आप आपकी गिरिया अदा करेंगे। जब सन 61 हिजरी में करबला से ये काफ़िला रवाना होने लगा, काफ़िला जाने लगा, एक मतलब सब रुखसत हो चुकी जनाब सुगरा सलाम से। जब सब रुखसत हो गए, जनाब सुगरा एक मरतबा आती हैं, जनाब अली असगर को अपनी आगोश में ले लेती हैं। आगोश में लेने के बाद कहती हैं, अरे भैया अली असगर, अरे मेरे असगर, क्या इस आलम गुरबत में क्या तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे? जैसे ये फिक्रा सुनना था, एक मरतबा जनाब अली असगर बहन के बाहों में हाथ डाल देते हैं, डालने के बाद एक मरतबा जुदा नहीं होते हैं, सब बीवियाँ आती हैं, हर बीवी आती हैं, कभी लैला आती हैं लेकिन आगोश से जुदा नहीं होती हैं, कभी उम्मे कुलसूम आती हैं लेकिन आगोश छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कभी जनाब ज़ैनब आती हैं, अली असगर इस्लाम जुदा नहीं होते हैं, कभी खुद रुबाब आती हैं लेकिन जुदा नहीं होते हैं, कभी अली अकबर आते हैं लेकिन अली असगर इस्लाम जुदा नहीं होते हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं, आने के बाद हाथ फैलाते हैं, आजा मेरे लाल, अरे मेरे लाल असगर आजा मेरी आगोश में, नहीं आते हैं। एक मरतबा जाते हैं, जाने के बाद करीब पहुंचने के बाद कानों में कुछ कहते हैं, जैसे ही कानों में कुछ कहना था, एक मरतबा अली असगर अलैहिस्सलाम हुकूक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में आ जाते हैं। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में आए, एक मरतबा सुगरा तड़प जाती हैं, तड़पने के बाद कहती हैं, अरे बाबा आप सबको तो ले जा रहे हैं, हद ये है कि मेरे भैया अली असगर को भी ले जा रहे हैं, अब मैं किसके सहारे रहूं? करबला में पहुंच गया, करबला में वारिद हो गया ना, जब सब शहीद हो चुके, मोहम्मद शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, यहाँ तक कि मौला अब्बास भी शहीद हो गए। जब सब शहीद हो गए ना, एक मरतबा इमाम हुसैन ने क्या देखा, खैमे से रोने की आवाज़ आ रही है, खैमे से रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे मेरे खैमा पर पहुँचे के बाद का, अरे बहन ज़ैनब अभी हुसैन जिंदा है, अभी हुसैन जिंदा है, हुसैन के होते हुए बीवियों में कैसा तला तुम, हुसैन के होते हुए बीवियों में क्यों ऐसा हो रहा है, बीवियों क्यों रो रही हैं? जैसे ये फिक्रा सुनना था, एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ने के बाद था, ऐ भैया हुसैन, आपकी आवाज़ इस्तिगासा में इस दर्द था कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है, अली असगर झूले में नहीं रह रहे हैं। हाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, लाओ मेरे बच्चे को मेरी गोद में दे दो, लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो, इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ अली असगर क्यों झूले में नहीं रह रहे हैं। एक मरतबा रिवायत कहती है, जनाब रुबाब ने ऐसे ही ला के जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को नहीं दे दिया, एक मरतबा ले गई, खैमे में ले जाने के बाद सजाना शुरू किया, संभालना शुरू किया, इस तरीके से कहा जिस तरीके से एक सिपाही मैदान में जाता है, इस तरीके से अली असगर को जनाब रुबाब ने आमादा करने के बाद आस्तीनों को उलट दिया, आस्तीनों को उलटने के बाद चाक को गिरेबान को चाक कर दिया, चाक करने के बाद ला के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगोश में देती हैं। आप जरा एक मिनट मेरी तरफ मुखातिब होना। एक मरतबा कहती हैं जनाब रुबाब, अरे आका हुसैन, अरे मेरे वाली, आपसे एक इल्तिजा है, इल्तिजा ये है कि मेरे बच्चे को इस तरीके से न ले जाना, मेरे बच्चे को कांधा लगा कर ले जाना। एक मरतबा इमाम हुसैन तरफ जाते हैं, कहते हैं बीबी क्यों? कहा इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जब तक आप जाएं अली असगर का चेहरा आपके कांधे पर रहेगा, तो मेरी नजर देर तक अली असगर पर रहेगी। खुदा को कोई हाँ मेरे वाली,
आप जब तक जाएंगे, आप जब तक जाएंगे ना, जब अली असगर आपके कांधे पर होंगे तो आप अली असगर के चेहरे की तरफ मैं ज़ियारत करती रहूँगी देर तक। अलगरज ये कि बानों का लाल, अलगरज ये कि इमाम हुसैन इस्लाम मैदान जंग में लाने के बाद एक मरतबा मुखातब होते हैं जालिमों की तरफ, जालिमों से मुखातब होकर कहते हैं तुम नहीं देखते, अरे तुम्हारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, तुम्हारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, ज़रा सोचो अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा प्यासा हो तो तुम लोगों के दिल पे क्या गुजरती होगी। अरे तुम्हारी नज़र में अगर मैं खतावार हूँ, मैंने कोई खता की है, मैंने कोई गलती की है, तो ये मेरे मासूम से बच्चे की क्या खता है, ये मेरा मासूम बच्चा तो मासूम है, इसकी तो कोई खता नहीं है, इसको ज़रा एक चुल्लू पानी दे दो, एक चुल्लू पानी दे दो। लेकिन फौज अश्किया नहीं सुन रही है। एक मरतबा इमाम हुसैन इस्लाम जनाब अली असगर से मुखातब होते हैं, कहते हैं मेरे लाल, मेरे बेटे, अरे तुम भी तो हुज्जत खुदा के बरदम हो, तुम भी अपनी हुज्जत तमाम कर दो। रवायत कहती है अब जब अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह खोला, ज़बान तालू से छुप नहीं रहती, ज़बान तालू से छुप नहीं रहती। एक मरतबा नन्हे नन्हे होठों पर सूखी ज़बान गिराना शुरू कर दिया। हाँ, अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जैसे ही अली असगर ने अपने लबों पर ज़बान को फेरना शुरू किया ना, फौज अश्किया में तलातुम मच गया। फौज अश्किया मुंह फेर फेर कर रोने लगी। अभी उसमें से कुछ फौजी ये कह रहे थे ऐ शिम्र इस बच्चे को पानी पिला दे, इस बच्चे को पानी पिला दे, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हाँ, अरबाब एक मतलब शिम्र मुखातब होता है आईना आईना हुरमुला, अरे हुरमुला कहाँ है, हुरमुला को बुलाया गया। जैसे ही हुरमुला आया ना, एक मरतबा हुरमुला से मुखातब होकर कहता है मजहूम एक कलामुल हुसैन, अरे हुसैन के कलाम की बच्चे को अपनी आगोश में लिए हैं। हुरमुला जो है 3 बाल का तीर संभालता है, 3 बाल का तीर कमान में जोड़ता है। जोड़ने के बाद एक मरतबा क्या होता है, मलून चाहता है कि अली असगर अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना करें, लेकिन उसका तीर गिर जाता है। एक मरतबा फिर ऐसे ही होता है तो दोबारा लश्कर वाले ने कहा ऐ हुरमुला, जब भी किसी बहादुर का नाम आता था, जब भी किसी तीरंदाज का नाम कोई लेता था तो सबसे पहले तेरा नाम लेता था। आज तुझे हो क्या गया है, आज तुझे क्या हो गया है, तू एक बच्चे से डर गया। एक मरतबा हुरमुला कहता है मैं बच्चे से नहीं डरा हूँ, जैसे ही मैं तीर कमान में जोड़ना चाहता हूँ तो न जाने कितने गले आ जाते हैं। कभी अली असगर के गले पर रसूल खुद अपना गला रख देते हैं, कहते हैं मेरे इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। कभी इस गले पर जनाब सैयदा खुद अपना गला रख देती हैं और एक फरियाद करती हैं ऐ हुरमुला, मेरे 6 महीने के लाल ने तेरा मरतबा मलून कुछ नहीं सुनता है। जैसे ही 3 बार का तीर वो कमान में जोड़ता है, जोड़ने के बाद एक मरतबा रहा करता है। अब क्या हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, अरबाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में अली असगर है, तीर सनसनाता हुआ चला आकर गुलूए अली असगर पर लगा, गुलूए अली असगर पर ही नहीं लगा, तीर इतना बड़ा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू में पेवस्त हो गया। एक मरतबा बच्चा बाप के हाथों पर मुंसलिब हो गया। ये देखना था। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे को अली असगर अलैहिस्सलाम खून को हाथों में लिया। हाथों में लेने के बाद आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं, आसमान से आवाज आती है ऐ हुसैन, अगर इस खून ना हक का एक कतरा आसमान तक आ गया तो क़यामत तक एक दाना एक बूंद बारिश नहीं होगी, एक बूंद बारिश नहीं होगी। चाहते हैं कि अली असगर के खून को जमीन पर फेंकें, लेकिन जमीन से आवाज आती है ऐ मौला, अगर अली असगर का खून जमीन पर गिरा तो क़यामत एक दाना ना उगेगा। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून को देखते हैं, देखने के बाद इनकार आसमां को है, राज़ी ज़मीन नहीं। अरे असगर तुम्हारे खून का ठिकाना जब कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खून के चुल्लू में अपने चेहरे पर मल लेते हैं, चेहरे पर मलने के बाद अब चाहते हैं कि क़याम हुसैनी की तरफ चलें, ख़ैमे की तरफ चलें। आप जैसा कि कल अमाल करेंगे, कभी 7 मरतबा आगे जाएंगे, कभी 7 मरतबा पीछे जाएंगे, ये वही बच्चे की सुन्नत है। और बात ऐसा अब चाहते हैं कि ख़ैमे की तरफ जाएं और ख़ैमे की तरफ बढ़ते हैं। एक मरतबा बढ़ते हुए कदम को रोक लेते हैं, रोकने के बाद 7 कदम पीछे आते हैं, आने के बाद कहते हैं मैं तो लेके आया था
देखना, अगर पूछ न ले कहीं इसकी माँ और बाप पूछ न ले मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था। ये कहते हुए एक मरतबा खैमे की तरफ जाते हैं। जैसे खैमे के पास पहुंचते हैं, कहते हैं रुबाब अपने बच्चे को ले। जैसे ही आवाज़ सुनना था, रुबाब से पहले एक 4 साल की बच्ची खैमे से निकली। खैमे से निकलने के बाद सिर्फ एक फिक्रा कहा, अरे बाबा आपकी नज़र में भैया बहुत अच्छा था, भैया को आप पानी पिला रहा है, मैं प्यासी रह गई। एक मरतबा जैसे ये फिक्रा सुनना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबा के दामन को पलटा। अब जब अबा के दामन को पलटा, 4 साल की बच्ची देखने के बाद ताब न ला सकी, कहती है अरे बाबा ये भैया के गले पर कैसा निशान है, ये भैया के गले पर क्या हो गया है, भैया के गले से कैसा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के। एक मरतबा जनाब रुबाब देखती हैं, देखने के बाद कहती हैं ऐ मेरे लाल मैंने तो सुना था जंग में बहुत से लोग शहीद होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि तेरे जैसे फूल से बच्चे भी कभी जंग में शहीद होते हैं, तेरे जैसे बच्चे भी इस जंग में शहीद होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को लेके रिश्ते खैमा आते हैं। आने के बाद चाहते हैं कि सब लोग खोजें और अली असगर अलैहिस्सलाम को दफन कर दें। एक मरतबा तलवार से कब्र को खोदना शुरू करते हैं। क्या देखते हैं कि किसी की रोने की आवाज़ आ रही है, किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी दाएं जानिब मुखातिब होते हैं, कभी बाएं जानिब मुखातिब होते हैं, कभी सामने देखते हैं। एक मरतबा जब कोई ना दिखा तो हाथों पर नजर गई, क्या देखा, जुल्फ़िकार रो रही है, जुल्फ़िकार रो रही है। एक मरतबा जुल्फ़िकार से मुखातिब होकर कहते हैं ऐ जुल्फ़िकार अब तुझे क्या हो गया है। एक मरतबा जुल्फ़िकार से आवाज़ आती है ऐ मौला ऐ मेरे आका, मैं आसमान से आई थी सिर्फ कुफ्फारों के कत्ल करने के लिए, मैं आई थी इस्लाम की मुहाफ़िज़त के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन ऐसा भी आएगा 6 महीने की बच्चे की कब्र भी मुझे बनानी पड़ेगी। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के। अलगरज ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर अलैहिस्सलाम को सुपुर्द खाक कर दिया। सुपुर्द खाक करने के बाद अब अजीज़ों हमारे यहाँ और आपका दस्तूर क्या है, जब भी मिट्टी होती है, जब भी कब्र बन जाती है, हम क्या करते हैं, कब्र पर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा आप सोचें, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पानी कहाँ है जो कब्र पे डालें, पानी कहाँ है जो कब्र पे डालें। रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कब्र पर इस कदर रोए कि कब्र जो है आंसुओं से तर हो गई। एक मरतबा रो ही रहे थे, क्या देखा, किसी के आने की आहट सुनी, किसी के आने की आहट जब सुनी उसने सलाम किया। सलाम करने के बाद जैसे ही वो सलाम किया, जवाब सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे चुके। देने के बाद मुखातब हुए, कहा भैया, कहा भाई, इस आलम गुर्बत में तू कौन है जो सलाम कर रहा है, आज तक तो किसी ने सलाम न किया। एक मरतबा वो कहता है ऐ मौला ऐ आका, मैं सुगरा का कासिद हूँ, मैं कासिद सुगरा हूँ। एक मरतबा जैसे ही सुगरा का नाम सुना, इमाम हुसैन तड़प जाते हैं। तड़पने के बाद कहते हैं ला मुझे नामा दे दे, ला मुझे खत दे दे। एक मरतबा वो कहता है नहीं आका, सुगरा ने कुछ निशानियाँ बताई थी, सुगरा ने कुछ निशानियाँ बताई थी हमें। कहा क्या निशानियाँ बताई थी, कहा कि जब खत देने से पहले क्या देखना कि मेरे भैया नौजवान अली अकबर मेरे बाबा के दाहिनी जानिब होंगे, मेरे चचा अब्बास बाईं जानिब होंगे। खैमे से एक छोटा सा बच्चा घुटनियों के बल चलता हुआ आएगा, मेरी तरफ से पहले उस बच्चे को उठा लेना, उठाने के बाद प्यार करना, प्यार से उसको बोसा देना, बोसा देने के बाद फिर मेरे बाबा को ये खत देना। खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के। जैसे ये जुमला सुना, एक मतलब तड़प जाते हैं। तड़पने के बाद कहते हैं ऐ कासिर, तू जहाँ से मैं अभी उठ के आ रहा हूँ ना, देख ये कब्र जो है उसी चश्माए की कब्र है, ये कब्र उसी की कब्र है जो भाई जवान बताया था। वो देख भला जहाँ पर बंशी खा के सो रहा है, चचा अब्बास, सोरा का चचा अब्बास नहरे फुरात पर बाजू कटाए सो रहा है, और मोहम्मद वहाँ सो रहे हैं। अरे कासिम के टुकड़े इस गठरी में है।